Okay, so yesterday we tried to find out in the last class we tried to find out the velocity. So in this class what did we do is we tried to find out kinetic energy. Okay, and kinetic energy is nothing but half into m into v square. We know this kinetic energy is the energy by virtue of its motion. So simply by putting these values, the general equation of v which we derived yesterday, we tried to put it, and we are getting the equation for kinetic energy as m e to the power 4 by 8 h square epsilon naught square into z square by n square. But when we are trying to find out the potential energy, okay, if I use potential energy is equals to m into g into h, remember this is actually gravitational potential energy. What potential energy? This is gravitational potential energy. Now, for an electron which is having a mass of 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, okay, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, the gravitational potential energy is almost negligible. The gravitational potential energy is almost negligible. कौन आप लोगों में से मुझे बता सकता है ऐसा क्यों मैंने एज्यूम किया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन? कोई? ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। ओके, इतना छोटा इसका मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। आप लोग खुद एज्यूम कीजिए, आप लोग खुद सोचिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो मैंने पुट किया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको अगर मैं 10 भी ले लेता हूं, और h बताइए h हम लोग कितना लेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? सो ग्राउंड से हाइट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो दैट इज व्हाई फॉर एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटिंग योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ लिटिल डिफिकल्ट। अब सोचो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 टू द पावर ऑफ 15 डाल दिया मैंने मीटर्स, 10 to the power 15 meters, it's quite large. 10 to the power 15 meters is quite large. That may be 10 to the power 15 meters बोलने से 10 to the power 12 kilometers, 10 to the power 12 kilometers is huge, very huge. ओके, सो इतना ज्यादा डिस्टेंस पुट करने के बाद भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है सर? यहाँ पे 10 to the power minus 31, यहाँ पे 10 to the power 15, 10 to the power minus 16 बचा, और ये 10 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 15, मतलब 0.00000 कितना 15 डेसिमल्स तक, मतलब एटलीस्ट 14 डेसिमल्स तक जाके उसके बाद एक 9 आएगा, which is still negligible. क्या आप लोगों को समझ में आया कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए नेग्लिजिबल क्यों हो रहा है? यस, मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। तो समझ में नहीं आया? आया सर, समझ में आया सर। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एज इट इज अ चार्ज्ड स्पेसिस, here gravitational potential energy is negligible, but another potential energy which we will call it as nothing but our electrostatic potential energy. कौन सा potential energy? Electrostatic potential energy. This is not negligible. The electrostatic potential energy is not negligible. देखते हैं क्या है ये electrostatic potential energy. सर आप सोचिए, मेरे पास न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, इट कीप्स रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. Now say for example from infinity someone must have brought this electron and must have placed in the circular orbit. Yes or no? Someone, that may be mother nature, you can think about God, you can think about anyone, but जब पहली बार एटम बना था
someone, some force must have brought the electron from infinity from somewhere and must have placed inside the electron, only then an atom has been formed. तो जब इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से हम लोग यहां तक लाते हैं, देखो न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली इस इलेक्ट्रॉन को पुल करते रहता है और हम लोग धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन को लाएंगे ताकि न्यूक्लियस के अंदर जाके ये टकरा ना जाए. So at that time what we are doing is we are trying to stop the electron from moving very fast. धीरे 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 हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को लाते हैं और इस ऑर्बिट में पुट करके हम लोग कुछ एनर्जी दे देते हैं. That means during this all of this process we are spending energy, and that energy is getting stored in the electron in the form of potential energy. और ये एनर्जी ग्रेविटी के वजह से नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से हुआ, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए एंड यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, बहुत ध्यान से सुनेंगे. सर, due to the very small mass of an electron, the gravitational potential energy on an electron is quite negligible, and even the change in gravitational potential energy is very, very negligible. That is the reason we are not considering gravitational potential energy, that is mgh, for an electron. So what are we considering, sir? We are considering the energy which is being spent to bring an electron from infinity and to place inside a atom. So in order to do this, someone must have done some work, must have spent some energy. So against whom are we spending this energy? Against electrostatic force. That is why this potential energy is called as electrostatic potential energy. Now, do you understand this? Yes, sir. अभिषेक, आया समझ में? प्रियंका? Yes, sir. Okay, so now let me give you the formula to calculate. Let me give you the formula to calculate this potential energy. Okay, so let us have a look. So actual में इस particular potential energy का formula होता है minus k q1 q2 by r. Okay, the formula for this is actually minus k q1 q2 by r. Okay, चलिए अब ध्यान से देखिएगा आप लोग. We know that k has a value of 1 by 4 pi epsilon naught. K has a value of 1 by 4 pi epsilon naught into q1, charge on the nucleus. याद कीजिए, how did we write charge on nucleus? Z into E. And q2 is charge on an electron, that is nothing but E divided by R. R के प्लेस में हम लोगों को जनरल इक्वेशन पुट करना है. क्या पुट करना है सर? जनरल इक्वेशन पुट करना है फॉर R. तो देखिए जनरल इक्वेशन क्या आएगा, ध्यान से देख के पुट करेंगे हम लोग. ओके, 2h square epsilon by, okay, 2h square epsilon by, okay, हम लोगों के पास क्या आएगा, 2h square epsilon not n square by इधर आ जाएगा तुम्हारा 2 नहीं है शायद, h square epsilon not by m e square z. यही था. देखिए तो ध्यान से देख के बताइए, रेडियस r का जनरल इक्वेशन क्या था? पाई. यही था. हाँ सर. हाँ सर. ओके, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू n स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर z. चलिए ये पाई m e स्क्वायर को z को मैं ऊपर ले जाके ना मैं इसको कैंसिल कर देता हूं. तो एक सेकेंड पहले ऊपर लिख देता हूं. तो e स्क्वायर और ऊपर ऑलरेडी e स्क्वायर था, तो ये हो गया e टू द पावर 4. ओके, उसके बाद क्या हुआ, z गया मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया z स्क्वायर.
ओके, उसके बाद m गया, पाई गया, ओके, तो m रह गया और पाई क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया नीचे के साथ। तो चलिए, तो नीचे का ये पूरा हटा देता हूं, ऊपर ले गया मैं इसको। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है, माइनस m e to the power 4 by 4 h square epsilon naught square into z square by n square। देखिए सबको यही आ रहा है कि नहीं, माइनस m e to the power 4 by 4 h square epsilon naught square into z square by n square। Okay, here this value is nothing but our potential energy, okay, electrostatic potential energy on the electron। क्या आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ सर। ओके, अगर आप लोगों को ये समझ में आया, then we will now try to simply find out the total energy of an electron। This one derivation will clear almost all concepts of atomic structure, sir। Almost all concepts of atomic structure will be cleared। Okay, so have a proper look। So total energy of an electron is nothing but kinetic energy plus potential energy। तो देखते हैं कितना आ रहा है, m e to the power 4 by 8 h square epsilon naught square into z square by n square plus पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस m e to the power 4 by 4 h square epsilon naught square into z square by n square। ओके, आई डिडंट राइट दैट, ओके, n square। ओके, अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, सो द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is nothing but, यहां देखिए तो m e to the power 4 by h square epsilon naught square into z square by n square। ये पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, 1/8 माइनस 1/4 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं सर? हाँ सर। 1/8 माइनस 1/4 इज माइनस 1/8। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, 1/8 माइनस 1/4 इज माइनस 1/8, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आ जा रहा है मेरे पास, ये आ रहा है माइनस m e to the power 4 by 8 h square epsilon naught square into z square by n square। ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी का रिलेशनशिप। अब ना मैं चाहता हूं आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें, ओके, बहुत ही ध्यान से देखें और मुझे बताएं आप लोगों को यहाँ पे कोई रिलेशनशिप दिख रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बीच में, इनके फॉर्मूलास के बीच में क्या आप लोगों को कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? कौन बताएगा क्या रिलेशनशिप दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। सिंपली काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों को आया था हाँ सर। उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को आ जाएगा। अरे ये ठीक है। नेक्स्ट बताइए, टोटल एनर्जी और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिखा कि नहीं? हाँ सर। ओके, ओके, और क्या दिखा, ध्यान से देखे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिख रहा है कि नहीं?
सॉरी उल्टा लिख दिया। potential energy is minus 2 times of kinetic energy। ये रिलेशनशिप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 times of total energy, potential energy is equals to negative of 2 times of total energy। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। बहुत इजी है, आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। डायरेक्टली इन रिलेशनशिप से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के जेई में, नीट में, एडवांस में हम लोगों को पूछा गया है। तो अभी जैसे ही आज मैंने पढ़ाया ये आप लोगों को बहुत इजीली याद होगा, बट थिंक अबाउट अ सिचुएशन आज से एग्जैक्टली 1 ईयर बाद जब आप लोग सेकेंड ईयर में होंगे, 1 ईयर 1.5 ईयर के बाद, क्या आप लोगों को ये रिलेशनशिप्स याद होंगे? नहीं होंगे। That is all about your JEE and NEET. JEE, NEET and JEE Advance is all about consistency. आप कितना consistently, आप कितना समझे इस बात को, और आप कितना consistently इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, बार बार इन चीजों को देख रहे हैं, राइट? उस पर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट? ओके, so finally we have calculated what is the total energy of an electron, what is kinetic energy of an electron, what is potential energy of an electron, what is the relationship between total energy, kinetic energy, total energy, potential energy, kinetic energy, all of these we have calculated। तो चलिए मैं आप लोगों को जो टोटल एनर्जी का ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला, जनरल इक्वेशन, उसका मैं वैल्यू बता देता हूं। चलिए, so the total energy which we have calculated is this। अब टोटल एनर्जी को मैं E करके लिखूंगा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द nth ऑर्बिट, तो En लिखेंगे हम लोग इसको। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय माइनस तो था नेगेटिव साइन, me⁴ by 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, उसका वैल्यू आ जाता है 13.6 into z², where z is nothing but atomic number, n², where n is nothing but your shell number, मतलब the orbit number in which an electron is present, and इसका यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूनिट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपका एनर्जी का, so the first formula for energy is energy in any nth orbit is given by minus 13.6 into z² by n² electron volts, z² by n² electron volts। अब ध्यान से देखिए, सर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में है। नहीं सर, आप हम लोगों को बताइए कि जॉल्स के यूनिट में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर एनर्जी का यूनिट जॉल्स में रखते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करें, हमें जॉल्स चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग जॉल्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। सो माइनस 13.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज को पुट करना पड़ेगा, ई के प्लेस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना पड़ेगा, तो हम लोगों को जॉल्स में मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो वोल्ट कूलम दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जूल्स, तो इनटू z² by n², अब आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे यूनिट जूल्स। तो चलिए सर सिंप्लीफाई करके थोड़ा देख लेते हैं जूल्स में कितना आता है। तो जूल्स में आता है -2.18 into 10⁻⁻18 z² by n² जूल्स। तो हम लोगों को आज दो फॉर्मूलाज मिले, एक हम लोगों को मिला सर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन nth ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ जूल्स, और एक हमें मिला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दो अलग अलग यूनिट्स में हम लोगों ने लिख लिया। क्या किसी को कोई इश्यू है इसमें? देखिए ध्यान से देख के बताइए। नो सर। नो सर। वेरी गुड। ओके, अब
अब हम लोग कुछ चीजें करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन करेंगे इसके बाद, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग विच यू पीपल विल डू इज, एज यूजुअल आप लोग कैलकुलेट करेंगे। सो यू विल कैलकुलेट, राइट डाउन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E1, E2, E3, E4 for hydrogen atom. Also calculate E2 minus E1, E3 minus E2 एंड लास्ट वाला नहीं लिख रहा हूं, E4 minus E3। ये तीन वैल्यूज भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यू विल कैलकुलेट E1, E2, E3, E4 एंड यू विल ऑल्सो कैलकुलेट E2 minus E1, E3 minus E2 एंड एज वेल एज E4 minus E3। चलिए सर फटाफट। बन गया सर? किसी का नहीं हुआ? फर्स्ट टेल मी, आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं या जॉल्स वाले फॉर्मूला में? सर मैं जॉल्स में कर रही हूँ। सर मैं भी जॉल्स में कर, दोनों जॉल्स में कर रहे हैं। और औरो? अभिषेक? सर मैं भी जोश में कर रहा हूँ। जॉल्स में कर रहे हो, अच्छा। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे E1, E2, E3, E4 का वैल्यूज बताओगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग जॉल्स में सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को हटा रहा हूं यहां से। वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। यू कैन सॉल्व इट इन either इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इन जॉल्स, नो इश्यूज, बोथ द वेज, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें किस यूनिट में पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग। चलिए, E1 तो सबका आया होगा -2.18 into 10 to the power -18 joules आया। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। E2 -0.545 into 10 to the power of -18 joules, ये आया। हाँ हाँ सर। सर। E3 -0.242 into 10 to the power of -18 joules, ये आया। हाँ सर। हाँ सर। E4 ओके। ये हम लोगों को कितना आया बताइए? -2.18 और ये नीचे है मेरा डिवाइडेड बाय 4² 16 हो जाएगा, तो 0. इधर हो गया 1 जा 16
बच गया तुम्हारा वहां पे 558, तो 16 3 से 48, ओके। तो ये आ जाएगा माइनस 0.136 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ध्यान से देख के बताइए, क्या हम लोगों को यही चार वैल्यूज मिला, E1 E2 E3 E4 का? हाँ सर। हाँ सर। So there are few things here which we have to have a look at. Number one, the energy of the electron in the negative way, okay, अगर negative way में मैं देख रहा हूं तो as I go away from the nucleus, the energy is decreasing. ओके, सो नेगेटिव साइन को मैं हटा के, एक्चुअली नेगेटिव को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो -0.13 इज ग्रेटर देन -2.18। मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेगेटिव को हटा के बात कर रहा हूं। द एनर्जी इज डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम E1 to E4. That means as you go away from the nucleus, the energy keeps decreasing. Okay, the negative energy keeps decreasing. The negative energy keeps decreasing. क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। एक्चुअल में मैं चाह रहा था आप लोग ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इन वैल्यूज को निकाले, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम लोगों को और ही, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। सो लेट अस सॉल्व फॉर E2 माइनस E1। देखिए कितना आ रहा है, E2 is -0.545, ओके, -0.545 एंड माइनस ऑफ -2.18, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2.18। तो हम लोगों को डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.635 इंटू 10⁻⁻18, इतना जॉल्स का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट E3 माइनस E2 करते हैं हम लोग। E3 माइनस E2 करने से देखिए E3 कितना है, -0.242, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। E2 कितना है, 0.545 इंटू 10⁻⁻18। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों को मिलेगा 0.303 into 10⁻⁻18 joules. In the same way, E4 minus E3 अगर हम लोग करेंगे, E4 minus E3 अगर हम लोग करेंगे, तो वो देखिए कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो E4 है -0.136, ओके, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 0.242, ओके, तो हम लोगों का आ रहा है 0.106 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। तो क्या आप लोगों ने यहाँ पे कोई एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया? Did you people notice something very much important? Sir, the energy gap between the first two orbits is very high, but as I go from the next two orbits, that is E3 minus E2, it is becoming low. Next, when I'm going for the next two orbits, it is becoming even lower. सोचो E5 माइनस E4 करूंगा तो कितना होगा, और भी लो चला जाएगा। ओके, इन दिस वे। तो हम लोगों को समझ में क्या आ रहा है, सर, एज वी गो फ्रॉम the nucleus, as we go away from the nucleus, हम लोग देखेंगे जो एनर्जी ऑर्बिट्स है मेरे, वो धीरे धीरे उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम होते जाता है। ओके, इसको इमेजिन कैसे करना है, चलिए वो भी बताता हूं मैं तुम लोगों को। क्या हम लोगों को सबसे पहले ये समझ में आया कि नहीं, पहले देख लीजिए। सबको आया समझ में? E1 कैलकुलेशन, E2 कैलकुलेशन, ये सारे कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Okay, so now let us try to understand how to imagine this. चलिए देखते हैं। तो इसका इमेजिनेशन कुछ ऐसा होता है सर, there is a nucleus,
ओके, न्यूक्लियस के इमीडिएटली बाद में जो हमारा फर्स्ट एनर्जी शेल है, न्यूक्लियस और इसके बीच में काफी गैप है, और फर्स्ट एनर्जी सेल और सेकंड एनर्जी सेल के बीच में गैप जो है वो थोड़ा सा कम है। ये मैं किसका गैप बोल रहा हूँ? एनर्जी गैप बोल रहा हूँ। सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी गैप और भी कम है, थर्ड और फोर्थ के बीच में एनर्जी गैप और भी कम है। आप लोग गौर कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं धीरे धीरे इन एनर्जी शेल्स को और नजदीक नजदीक ला रहा हूं। देखिए, फोर्थ और फिफ्थ या थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में एनर्जी गैप और भी कम हो जाता है, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में और भी कम हो जाता है, ये और नजदीक आ जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए, सर, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज वी स्लोली मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स इज डिक्रीजिंग। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। Okay, the energy gap between the orbits is decreasing as we go from away from the nucleus. The energy gap between the orbits is slowly decreasing. चलिए, ये हो गया हमारा इमेजिनेशन। ये सब चीज को आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे तभी जाके बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, राइट? Now we know how to calculate energy of an electron present in any Bohr orbit. Now once again I am drawing a big khopdi over here, okay, a danger symbol. All of the above derived formulas are, ये अपने नोटबुक में ऐसे ही खोपड़ी बना के लिखेंगे, strictly valid only for, पूरा कैपिटल में, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम is only valid for mono electronic system. याद रखिए, this is not valid for मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सिर्फ उन एटम्स के लिए ये वैलिड है, ओके, जिनमें सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन होगा, अ न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए इनमें से कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। So write a note, put a khopri over there, and then write down all of the above derived formulas are strictly valid only for monoelectronic systems. तो हम लोगों को पता है monoelectronic system मतलब कौन कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है, बेरिलियम 3 प्लस है, बोरोन 4 प्लस है, ऐसे। तो जो भी यही सब एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों का मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे। Okay, now what we are going to do is we are going to see about the applications of Bohr's model of atom. Applications of Bohr's model of atom, बहुत मजा आएगा सर। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हम लोगों को बहुत सारे लॉजिकल चीजें पता चलते हैं। ओके, सो एक एक करके हम लोग उन्हें समझेंगे। सर कौन से लॉजिकल चीजें हमें पता चल सकता है वो सारे समझेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट सा चीज समझना है। व्हाई, पता नहीं आप लोगों ने तो मेरे से पूछा नहीं, व्हाई डज इलेक्ट्रॉन have negative energy inside an atom? क्या आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया, why does electron have negative energy inside an atom? Think about this properly. Okay, sir,
नेगेटिव एनर्जी क्यों आया? हम लोग एनर्जी फॉर्मूला में -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, -2.18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू 10⁻18 जूल्स, ऐसे माइनस में क्यों आ रहा है? What is this negative sign? What does this negative sign represent? तो समझिए, सर मुझे पता है सर। बताओ बेटा। सर क्योंकि जो साइंटिस्ट इसे इन्वेंट किए थे वो अपने से ही दे दिए थे इससे नेगेटिव। अच्छा, चल ठीक है, इसको हम लोग और लॉजिकली समझेंगे, ठीक है? वो लोग अपने से जो नेगेटिव दिया था हम लोग उसको और लॉजिकली समझेंगे, नेगेटिव क्यों होना चाहिए, ठीक है? चलिए देखो, से फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है? तुम लोग क्या हुआ, एक ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट है, से फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पे, और तुम यहाँ पे अपना कार लेके, तुम अपने कार में आराम से बैठे हुए हो, और एक छोटा सा बच्चा आया तुम्हारे पास और उसने बोला भैया पैसा दे दो, मैं ना भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ मैं, पैसा दे दो मुझे, मैं कुछ खाऊंगा। तो तुमने सोचा कि अरे यार तुम पैसा लेके क्या करोगे, चलो मैं तुम्हें ना अपना भाई बना देता हूँ, राइट? तो अभी देखिए, दिस किड ओवर हियर, ओके, इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर पर्सन, से कोई और पर्सन है यहाँ पे, उसके मम्मी पापा ही हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है, जो कि इसे फोर्स कर रहा है बेग करने के लिए, ओके? तो तुमने क्या किया, तुम आए बाहर गाड़ी से, तुमने बोला अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं ना तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ना अच्छा स्कूल में डालना चाहता हूँ, ऐसे वैसे करके बोला, और तुम गए इस बंदे के साथ, ये छोटे वाले बच्चे के साथ, तुम इसके पास गए, तो इसने तुम्हें बोला कि देखो मैंने इसको बचपन से खिलाया पिलाया है और इसको मैंने अभी बड़ा किया है, ये अभी जाके बेग करके पैसा लेके आता है तो मैं अपने पास रखता हूँ, देखो तुम एक काम करो, तुम मुझे ना 2 लाख रुपीस दे दो और तुम ये बच्चे को ले जाओ। तुम अगर इस बच्चे को ले जाना चाहते हो, अपना भाई बनाना चाहते हो या जो भी बनाना चाहते हो, राइट? तुम 2 लाख रुपीस दे दोगे तो इस बच्चा को ले जाओगे। तो माई क्वेश्चन टू यू पीपल इज, नाउ दिस बच्चा ओवर हियर इज हैविंग हाउ मच मनी ऑन हिम? इस बच्चे के ऊपर कितना, इस बच्चे के पास कितना पैसा है अभी? अगर मैं ये पूछूंगा तो आप लोग क्या बताओगे? याद करो या ध्यान दो, इस बच्चे के पास अभी -2 लाख रुपीस है, -2 lakh, because this kid is not free, he is not having freedom to go anywhere. Why? Because he is under the influence of, he is under the influence of this particular bad fellow या bad person, right? तो ये इसके कंट्रोल में है, ये इसके फोर्स में है, राइट? तो मैं आया या तुम गए, तुम इस बच्चे को फ्री करना चाहते हो, दैट मीन्स तुम्हें 2 लाख रुपीस प्लस में देना पड़ेगा। तो इस बच्चे के पास कितना मनी है? -2 लाख है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला? हाँ सर। In the same way, an electron which is present inside an atom, okay, is under the influence of the nucleus. The electron is not free. The electron cannot move anywhere it wants. The electron is under the influence of the nucleus. That is why the electron is controlled by the nucleus. It is influenced by the nucleus. That is the reason why electron is having negative energy. Okay, a poor person living somewhere, okay, is working bonded labor, say for example, think about bonded labor, okay? Bonded labor में एक बंदा जो है वो काम कर रहा है। Now why is he working? Why is he bonded? Why is he working there? Because at some point of time he must have taken some money, okay, and he has used it. तो उस बंदे के पास अभी क्या हो गया? नेगेटिव एनर्जी हो गया, मींस नेगेटिव मनी हो गया। जब तक उसको तुम पॉजिटिव मनी नहीं देते हो वो बंदा फ्री नहीं हो सकता है। इन द सेम वे, an electron present inside an atom is under the influence of the nucleus, is in the control of the nucleus, due to which the electron has negative energy, due to which we say that the electron has got negative energy, okay?
थिंक अबाउट इट मोर प्रॉपरली। ओके, कल सुबह मैं फिर से इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एनर्जी यहीं से स्टार्ट करूंगा और एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम बताऊंगा। समझ गए सर? हाँ सर। हाँ सर। Okay, so have a closer look and understand it deeply. Okay, chaliye, we will meet again tomorrow. Till then, have fun. Bye bye. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.